آج ویو 360 میں پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی رفتار میں کمی، لیکن کیا گنجان آباد پنجاب سے زیادہ خطرہ اب بلوچستان میں ہے؟ امریکہ میں کرونا وائرس شہروں سے اب دیہی علاقوں کا رخ کرنے لگا، لاکھوں بے روزگار افراد پھر سے حکومتی امداد کے منتظر۔ اور عید کا گوشت اگر آپ کے فریج میں ہے تو آج دیکھیے ضلع خیبر پختونخوا کا مشہور پٹا ٹکا کیسے بنتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کرونا وائرس کی وبا کی نوعیت مسلسل بدل رہی ہے۔ کچھ ایسے ملک جہاں حالات بہتر ہوئے تھے پھر سے محدود لاک ڈاؤنز کی جانب جاتے نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے یعنی پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن عید پر اعلان شدہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ کووڈ-19 کی وبا پھوٹنے سے اب تک اگرچہ عالمی سطح پر 1,80,00,000 سے کچھ زیادہ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، لیکن 1,15,00,000 سے زیادہ صحت یاب بھی ہو چکے۔ اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 61,00,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر نئے کیسز کی مجموعی تعداد میں کوئی بڑی اور مستقل کمی اب تک نہیں لائی جا سکی ہے۔ امریکہ میں بعض ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وائرس کے خلاف حکمت عملی کو ازسر نو ترتیب دیا جائے۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں آئندہ 6 ہفتوں کے لیے رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ سنگاپور نے کچھ مخصوص ملکوں سے آنے والوں کو کوارنٹین یقینی بنانے کے لیے 11 اگست سے انہیں الیکٹرانک ڈیوائسز پہنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اب تک 20,00,000 سے کچھ زیادہ افراد کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ مارچ میں کرونا وائرس کے کیسز کی نشاندہی کے بعد 14 جون کو پاکستان نے پیک ہٹ کی تھی، جب ایک ہی دن میں 6,825 کیسز سامنے آئے۔ اس کے بعد سے یومیہ رپورٹڈ کیسز کی تعداد کم ہوتے ہوئے اب چند 100 پر آ گئی ہے اور بیشتر کیسز نمٹائے بھی جا چکے ہیں۔ 2 جولائی کو ملک میں انفیکٹڈ افراد کی تعداد اپنی بلند ترین سطح پر تھی، جب 1,08,000 کے قریب افراد میں یہ وائرس موجود تھا۔ آج یہ تعداد بھی گھٹتے گھٹتے 25,000 کے قریب آ چکی۔ پاکستان میں اس بار بڑی عید بھی چھوٹی عید کی طرح پابندیوں کے ساتھ منائی گئی اور ان پابندیوں کے نتائج کچھ ہفتوں بعد واضح بھی ہو جائیں گے، لیکن موجودہ اعداد و شمار جہاں خوشائند قرار دیے جا رہے ہیں وہیں ان سے کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان کی جانب اور ضیاء سے جانتے ہیں کہ جو ڈیٹا اس وقت ظاہر کیا گیا ہے، پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، کیا وجوہات پیش کی جا رہی ہیں اس کے لیے ضیاء؟ دیکھیے اصل اگر ہم حکومتی اعداد و شمار دیکھیں تو اسے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پاکستان بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ جب میری اس سلسلے میں بات ہوئی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے اس قدر اپنی اچھی حکمت عملی بنائی ہے جس میں وہ کوارڈینیشن کو بہتر قرار دے رہے تھے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کرونا سیمپلنگ کی گئی تھی جس کو وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے تمام جو وجوہات بنی جس کے بعد پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ لیکن جب میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر جاوید اکرم سے، تو انہوں نے حکومتی موقف سے اتفاق نہیں کیا بلکہ تنقید کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کے جو ٹیسٹ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہی گھٹا دی ہے، لہٰذا جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے تو مریضوں کی تعداد کیسے زیادہ ہوگی، وہ بھی روز بروز گھٹتی چلی جائے گی۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور یہ بھی بتائی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا رہن سہن مغربی ممالک سے بہت مختلف ہے، کیونکہ پاکستان میں اس قدر سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں مرد و خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، اور جو اگر مغربی ممالک میں کی بات کریں تو وہاں پر چونکہ سوشل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی وجہ بنی ہے کہ جو مغربی ممالک ہے وہاں پر جو کرونا کے کیسز ہے وہ زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں اور پاکستان میں کم رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اسی سلسلے میں جب حکومتی دعوے کو لے کے میں نے آغا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹر سے بات کی، ان کا بھی نام ڈاکٹر فیصل ہے، تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد کم ضرور ہوئی ہے، کسی حد تک ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کانٹیکٹ ٹریسنگ کو اس کی کامیابی کی وجہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس بات پر تنقید کی کیونکہ حکومت ایک ٹیسٹ گھٹا دیے تو پاکستان بھر میں جو ریشو ہے مریض سامنے آنے کی وہ بھی گھٹ گئی ہے۔ ضیاء، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ پنجاب، اور اس میں اس وقت جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس فرق کی ریزنز کیا ہیں؟ کیا ابھی تک لاجک سامنے آ رہی ہے اس پہ؟
देखिए असद, वैसे तो पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो हिकमत अमली है वो NCOC यानी कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल की ज़ेर सदारत जितने भी इजलास होते हैं उसमें बनाई जाती है, और इस NCOC की सदारत वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर असद उमर करते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने किसी हद तक सूबाई हुकूमतों को भी इख्तियार दिए हैं कि वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक अपनी हिकमत अमली अपनाए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में, जो कि आबादी के लिहाज से भी बड़ा सूबा है, उन्होंने लॉकडाउन मुकर्रर वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि लोगों ने बहुत अच्छा अपना बर्ताव रखा ईद के मौके पर, लिहाजा वो लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान सूबे की, तो बलूचिस्तान सूबे ने जो अपना लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया, 17 अगस्त तक ले गए हैं। इस सिलसिले में जब हमारी हुकूमत से बात हुई और जो प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए बता रहे थे कि अभी तो हुकूमत के मौक़िफ़ से यूँ भी इत्तफाक नहीं किया जा सकता कि गुज़िश्ता ईद उल फितर पर जब एकदम से कोरोना वायरस के मरीज जब पाकिस्तान भर में बढ़े थे तो अभी तो वो वक्त ही नहीं आया, यानी कि अभी तो ईद उल अज़हा गुजरे, महज अभी दूसरा दिन आज है या आज 2 दिन गुजरे हैं, लेकिन एकदम से हुकूमत ने कैसे ही फैसला कर लिया कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो ईद उल अज़हा का जो असर है वो तो 10 दिनों के बाद आएगा। जैसे ईद उल फितर के भी 10 दिनों के बाद पाकिस्तान भर में एकदम से केसेस बढ़े थे। तो एक तो ये उन्होंने तनकीद की हुकूमती जो मौक़िफ़ था उसके ऊपर। दूसरा उनका ये कहना था कि हुकूमत को इस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भर में जो है वो मरीज एकदम से बढ़े थे, तो क्या ही बेहतर होता कि ईद उल अज़हा पर भी थोड़ा सा हुकूमत धीमे मिजाज में चलती और एकदम से ख़त्म ना करती, ताकि जो पाकिस्तान भर में जो कोरोना मरीजों की तादाद है और ख़ासतौर पर जो तमाम सूबे जो एक पेज पे चल रहे थे, एक पिच पे चल रहे थे, वो सबके साथ अभी भी कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो है वो मुतफिक रहते और सब इकट्ठे रहते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान आपका। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $140 मिलियन के कोविड-19 रिलीफ पैकेज के लिए अब तक सिर्फ 25% फंड्स जमा हुए हैं। इदारे के मुताबिक KPK और बलूचिस्तान में कोविड-19 के सबब मुआशी तौर पर मुतासरा 1,20,000 अफराद के लिए खुराक की इमदाद का मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। इसके अलावा 35,000 मुहाजिरीन को माली इमदाद दी गई है और 30 लाख से ज़्यादा अफराद तक पानी और सेहत और सफाई की सहूलियात पहुँचाई गई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात के एतबार से अमेरिका सबसे आगे है। सदर ट्रंप का कहना है कि केसेस की तादाद अमेरिका में इसलिए ज़्यादा है कि अमेरिका टेस्ट भी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की सरबराह डॉक्टर डेबोरा ब्रिक्स ने खबरदार किया है कि वायरस अब शहरों से देही इलाकों में भी फैल रहा है। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 11% है। ऐसे अफराद की मदद के लिए ट्रंप इंतजामिया का पहला इमदादी पैकेज जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक्सपायर हो गया था। हालात तो बदले नहीं, लाखों लोग अब भी सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो सियासी इख्तिलाफात के बायस ताख़ीर का शिकार होती आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कोरोना वायरस वबा के दौरान बेरोजगार अमरीकियों को हर हफ्ते $600 का मिलने वाला बेरोजगारी अलाउंस खत्म हो गया, लेकिन डेमोक्रेट्स साल के आखिर तक इसमें तौसी पर इसरार कर रहे हैं। हम $600 के हक में रहे हैं। इनके पास $200 की तजवीज़ है जो काम करने वाले खानदानों की जरूरियात को पूरा नहीं करती। रिपब्लिकन रहनुमाओं का कहना है कि हफ्तावार $600 देने से कुछ लोग बेरोजगार रहने को तरजीह देंगे। येल यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट देने से लोगों में काम करने की हौसला शिकनी नहीं हुई। कुछ हालात में लोगों को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां लोगों को कम मुआवजा मिलता है। मसला ये है कि हमें इसमें तौसीक के लिए एक मायदा करने की जरूरत है। रिपब्लिकन्स हील्स एक्ट के तहत तकरीबन $10 खरब की तजवीज दे रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इस साल के शुरू में मंजूर शुदा $30 खरब वाले हीरोज एक्ट को बातचीत के नुक्ते आगाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों फरीकों ने इत्तेफाक किया है कि वो अभी किसी मुआहिदे के करीब नहीं पहुँचे हैं। हमें तवाज़न रखना होगा। यकीनन कारकुनों की मदद करने की जरूरत है, मईशत को सहारा देने की जरूरत है। इस खौफनाक बीमारी की वजह से लोगों को कारोबार बंद करना पड़ा, जो उनकी गलती नहीं है। दूसरी तरफ हमें मोहतात रहना होगा कि आइंदा नस्लों के लिए बहुत ज्यादा कर्जों का ढेर न लग जाए। कानून साजों ने मुतनबी किया है कि जब माली इमदाद के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है तो मुल्क को कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस और हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद से निमटने की अशद जरूरत है। अपने मुज़ाकरात में हम इस वबा के कुछ नताइज से निमटने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस वायरस को शिकस्त देना होगी, और ये उन नुकात में से एक है जिस पर हम अभी तक किसी मुआहदे पर नहीं पहुँचे हैं। गुज़िश्ता एहतिताम हफ्ता मुल्क भर में बहुत से लोगों के लिए अगस्त का किराया अदा करने की आखिरी तारीख गुजर गई थी।
मुतादिद रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा जारी है और अमरीकी इस इंतजार में है कि वाशिंगटन में इस हफ्ते कोई बात आगे बढ़े। ईशा सराई की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स और अमेरिका के आने वाले इंतखाबात के हवाले से खबरें और दुनिया भर की अहम मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए एक अहम मौजू तवानाई के मैदान में तरक्की है। इसके साथ ही माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत से वोटर्स के लिए अहमियत रखता है। सदर ट्रंप का फोकस है कि तवानाई के शोबे में अमेरिका की बालादस्ती हो, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल साबिक नायब सदर जो बाइडन माहौल दोस्त तवानाई का मंसूबा पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के नुक्ता नज़र में ये फ़र्क एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए क्या मानी रखता है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सदर ट्रंप ने अपने दौरे के दौरान अपनी इंतखाबी मुहिम के उस पैगाम पर जोर दिया जिससे उनके मुताबिक दुनिया में अमरीकी तवानाई की बालादस्ती को कायम रखा जा सकता है। उन्होंने टेक्सास से निकलने वाले खाम तेल की बरामद और कुदरती गैस के मामले पर कुछ परमिट्स पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप का ये मंसूबा उनके सियासी हरीफ और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन से मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता कि बाइडन टेक्सास में कुछ बेहतर कर पाएंगे। वो पहले ही कह चुके हैं और इसे रद्द कर चुके हैं और उनके प्लेटफॉर्म का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अगर कभी ये इंतहाई बाएं बाजू के सियासतदान बाइख्तियार हुए तो न सिर्फ मुल्क की सनत बल्कि इसकी मईशत को भी तबाह कर देंगे। उनके बयान करदा एजेंडा में पेरिस के माहौलियाती मुआहदे में दोबारा शामिल होकर अरबों डॉलर सर्व करना चाहते हैं ताकि हम उनका मुकाबला ना कर पाएं। टेक्सास में वोटर्स का रुझान 1980 की दहाई से ज्यादा रिपब्लिकन्स की तरफ ही रहा है। ताहम कुछ हालिया सर्वे बताते हैं कि बाइडन की पोजीशन ट्रंप से बेहतर है और इसकी एक वजह सदर की जानिब से कोविड-19 की वबा से निपटने का तरीकाकार है। रियासत टेक्सास का दारोमदार ज्यादातर तेल और गैस पर है और इस सनत को वबा की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रेंडन स्टाइनहाउजर का ख्याल है कि ये मामला सदर ट्रंप और इनकी पार्टी के लिए बड़ा मसला पैदा कर सकता है। वजह यह है कि रियासत में सनत और तेल और गैस से वाबस्ता ज्यादातर लोग और मुलाजमीन भी रिपब्लिकन्स हैं और सदर ट्रंप और उनकी पार्टी की हिमायत के लिए जो भी पैसा सर्फ हो रहा है वो तवानाई की इसी सनत से आ रहा है। जुलाई के वस्त में जो बाइडन ने 4 साल पर मुहित $2 खरब की सरमायाकारी का एक मंसूबा लॉन्च किया ताकि मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन, बिजली और कंस्ट्रक्शन के शोबों में साफ तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। उनका ये मंसूबा ऐसे प्रपोजल्स का एक तसलसल है जिससे मुल्क में कोविड-19 की वबा और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तबाह होने वाली मईशत को बहाल किया जा सकेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं तो उन्हें एक ही लफ्ज सोचता है कि ये झूठ है और जब मैं इस बारे में सोचूं तो मेरे जहन में मुलाजमतें आती हैं। इसी दौरान सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जो बाइडन के माहौलियात के एजेंडे को तवानाई की सनत के लिए नुकसानदेह बताकर पेश कर रही है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के हमले कामयाब नहीं होंगे। बहुत सी वो रियासतें जो इंतखाबात में मैदान जंग की हैसियत रखती हैं वहाँ पर साफ तवानाई की सनत में मुलाजमतों के बहुत से मौके मौजूद हैं। इसलिए जो बाइडन की तरफ से अपने मुआशी मंसूबे में माहौलियाती तब्दीलियों और साफ तेल और तवानाई को मरकज बनाना उनकी अक्लमंदी है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि उसने तवानाई के मामले पर सरकारी जमीनों पर कोयला किराए पर देने के मुआहदे को खत्म करके और ओबामा दौर में बनाए जाने वाले माहौलियाती उसूलों को रद्द करने के साथ साथ तवानाई के हुसूल के लिए अवामी जमीनों जिसमें अलास्का का भी कुछ ऐसा हिस्सा शामिल है जहां जंगली हयात पनपती है उस पर तलाश की इजाजत देकर अपने हिस्से का काम किया है। लेकिन माहौलियात पर नजर रखने वालों ने इन इक़दामात की सख्ती से मुखालफत की है। अमरीका में तवानाई और माहौलियात पर पैदा होने वाले इन मामलात का फैसला इस साल नवंबर के इलेक्शंस में होगा। पैट्सी विडाकुस्वारा के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबार को मुतासिर किया है, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय कुछ छोटे कारोबार करने वालों ने इस नई हकीकत को कबूल किया और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपने पांव जमाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढे। इन्होंने क्या नए तरीके ढूंढे और बदलते हालात के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं।
रियासत शिमाली डकोटा में एक कार डीलरशिप के मालिक कहते हैं कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला अपने मुलाजमीन में कमी करके भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय इसका एक मुख्तलिफ हल ढूंढा। When the pandemic first hit, वबा के फौरन बाद हमने 7 लोगों की एक टीम बनाई, 6 डीलरशिप में, जबकि रोंडा हमारी ऑनलाइन मदद करती हैं। रोंडा लाज वर्चुअली काम करती हैं। वो सारा दिन जरूरत के मुताबिक ग्राहकों और डीलरशिप के तमाम मतलूबा काम ऑनलाइन अंजाम देती हैं। COVID-19 situation is something that we started. हम इस वबा के दौरान जो कुछ कर रहे हैं इसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। बहुत से काम आप घर बैठे कर सकते हैं, जैसा कि पॉलिसीज बनाना, ये देखना कि सफाई के लिए क्या चीजें दरकार हैं और ये कि कौन से आलात कहाँ से लिए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। रेनाल्ड कहते हैं कि रोंडा के पास इतना काम है कि शायद उन्हें अपने लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की भी जरूरत पड़े। मैंने इस सूरत हाल में कई लोगों की नौकरियां खत्म होती देखी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें हर शोबे में और खास तौर पर कारोबार के तरीके बदलने की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है और दारुल हुकूमत दिल्ली का शुमार मुल्क के सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में होता है। लेकिन अब 4 माह बाद शहर में रेस्टोरेंट्स एक बार फिर खुलने लगे हैं। घरों में फंसे शहरी खुश हैं कि पाबंदियों के साथ ही सही जिंदगी की कुछ रौनक तो बहाल हुई और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुई थी, बेहतरी के लिए कुछ पुरुम्मीद है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट से। जिस्मानी दर्जा हरारत की चेकिंग, ऐप्स पर दिए जाने वाले मेन्यूज और ऑर्डर्स और चेहरे पर मास्क पहने वेटर्स। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बाहर खाना खाने का तजर्बा अब पहले से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे ही रेस्टोरेंट्स दोबारा खुल रहे हैं, ग्राहक मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के एहसास के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि शहर में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं और लोग महीनों से घर के अंदर बंद हैं। कुछ तो खुशी का मौका मनाने आए हैं और कुछ अपने खानदान के साथ। मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह लॉकडाउन में 4 महीनों तक जिंदा रही, इसलिए मैं अभी बेताबी से अपने खाने का इंतजार कर रही हूँ। ये जायका कहीं खत्म हो गया था, लिहाजा आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस जायके को दोबारा महसूस कर सकूँ। The feeling of going out. रेस्टोरेंट्स के मालिकान पर उम्मीद है कि फिलहाल जो सारे काम स्क्रीन पर हो रहे हैं, बिल आखिर वो मामूल पर वापस आ जाएंगे। रेस्टोरेंट्स इंटरनेट से हटकर इंसानी ताल्लुकात के लिए उम्मीद की आखिरी मंजिल हैं। इस दुनिया में हर चीज वर्चुअल हो सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और शराब खाने कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकते। लोग हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लोग खुशी मनाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स सार्फिन को राग़िब करने के लिए बराह रास्त राबते के बगैर खाना मुहैया करने, समाजी फासले के लिए मेज खाली रखने और साफ सुथरे किचन को यकीनी बनाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन अब भी इस सनत की बहाली एक तवील सफर है जो 17 लाख अफराद की मुलाजमत का जरिया था। ये रेस्टोरेंट प्राण शुकीरा के उन 2 रेस्टोरेंट्स में से है जिन्हें खोला गया है। वो कुल 25 रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। Out of the 1200 people मेरे पास 1200 अफराद काम करते थे। हर रेस्टोरेंट में एक वक्त में तकरीबन 70 से 80 लोग काम करते थे, मगर अब ये रेस्टोरेंट 14 अफराद की मदद से चल रहा है और दूसरे में 12 अफराद काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं फिलहाल 18 मुलाजमीन के साथ काम कर रहा हूँ। एक ऐसे शहर में जहाँ तफरी के लिए सबसे ज्यादा पैसे बाहर खाना खाने पर खर्च किए जाते हैं, लोग वहाँ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमें किसी भी तरह इससे निमटना है। हम घर बैठे मईशत को कमजोर होने नहीं दे सकते। अगर हम कुछ खोलना नहीं चाहते हैं तो ये हमारे लिए काफी खौफनाक है, लिहाजा आज मैं बहुत खुश हूँ। हो सकता है कि कुछ दिन बाद हम शायद दोबारा बाहर निकलें, क्योंकि खानदान के साथ लॉकडाउन के बाद ये हमारा पहला तजर्बा है। इससे इस सनत को उम्मीद बंधी है, जबकि वबाई मर्ज अब भी तशवीश का बायस है। लोग वायरस को अपनी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर तस्लीम करते हुए जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे ख्याल में हिंदुस्तानी सख्त जान है, हिंदुस्तानी हालात का मुकाबला करते हैं, वो अपने ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। ये शहर जो अपने पांव पर वापस आने के लिए लड़ रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा है। अंजना पस्ट्रीशा के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलते हैं पाकिस्तान। ईद उल अज़हा के मौके पर इस मरतबा सरगर्मियां कदरे महदूद रहीं, लेकिन बहुत से घरों में लजीज पकवान अब भी बन रहे हैं। तो एक रेसिपी हम आपको दिखाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का मज़ेदार और मुनफरिद पट्टा टिक्का। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला खैबर में दाखिल होते ही गोश्त के मुख्तलिफ पकवानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू आपका इस्तकबाल करती है। खैबर के रिवायती पकवानों में पट्टा टिक्का सर फहरिस्त है।
پٹھا ٹکا یہاں کا ایک روایتی کھانا ہے. یہ لنڈی کوتل ہی نہیں پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے. یہاں پٹھا ٹکا کھانے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اسے پسند کیا جاتا ہے. یہ قبائلی اضلاع کی نہیں پورے پاکستان کی پسندیدہ ڈش ہے. چربی میں لپیٹ کر بنانے کی وجہ سے اسے پٹا یعنی لپٹا ہوا تکا کہتے ہیں. اسے چھوٹا کاٹ لیتے ہیں اور انہیں سیخ میں نیم پختہ پکا لیتے ہیں. اس کے بعد اسے لے جا کر اس کے اوپر دمبے اور بکرے کے پیٹ کی چربی میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اور سیخوں پر لگا کر اسے کوئلے پر پکاتے ہیں. اس کے اوپر صرف نمک ڈالتے ہیں. ہم اکثر آتے ہیں 4 صدا سے یہاں پٹھا ٹکا کھانے کے لیے. ویسے تو یہ ہر سٹی میں ملتا ہے, پشاور کے نمک منڈی میں بھی ملتا ہے, لیکن یہاں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مختلف ہے. میرے ساتھ دوست ہیں دبئی سے آئے ہیں, ان کو بھی میں یہاں لے کر آیا ہوں سو ان کو کھلانے تھے, تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. پٹا ٹکا اب پاکستان کے کئی اور شہروں میں بھی ملتا ہے, لیکن ضلع خیبر جیسا ذائقہ کہیں اور نہیں ملتا. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, جمرود, ضلع خیبر. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.